श्री बृहद गुजरात संस्कृत परिषद द्वारा आयोजित संस्कृत साहित्यनी विविध कृतिओना परिचय माटेनी आ प्रवचन माळामां आजे 26मुं व्याख्यान छे। आजे एक अद्भुत कृतिनो आपणे परिचय प्राप्त करवाना छीए। परंपरा प्रमाणे सौथी पहेला हूँ बृहद गुजरात संस्कृत परिषद वती आप सौનું हार्दिक स्वागत करूं छूं અને श्री बलभद्रजीने विनंती करूं छूं के तेओ मंगलाचरण करे। श्री बलभद्रजी। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजोऽन्ते यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिंश्चित्तग्वं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम तुषारधिरस्व निवयन्मनुष्यान्ने नीयतेभिषुभिर्वा जिन एव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद बलभद्रजी। आजनी आ परिचय प्रवचन माळामां उपस्थित सहु श्रोतृवृंदનું हार्दिक स्वागत छे। આજે આપણી વચ્ચે પ્રોફેસર ઉષાબેન ચુડાસમા ઉપસ્થિત છે। ઉષાબા ચુડાસમા તેઓ અત્યારે આયુર્વેદિક કોલેજની અંદર સંસ્કૃતનું અધ્યાપન કાર્ય કરાવી રહ્યા છે અને પોતાનું પીએચડી કાર્ય બી કરી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં આયુર્વેદિક કોલેજોમાં भी સ્વાભાવિક રીતે સંસ્કૃતનું અધ્યાપન થાય છે કારણ કે આયુર્વેદ પોતે જ સંસ્કૃતમાં છે। પરંતુ ये प्रश्न था ये स्वाभाविक है कि त्या केवुं संस्कृत भणाववामां आवे छे। संस्कृत तो संस्कृत ज छे पण एना पाठ्यग्रंथो कया छे? तो लघु कौमुदी वगैरह व्याकरण शास्त्रना ग्रंथो तो त्यां छे ज, परंतु भाषा अने संस्कृत भाषामां जन सामान्य सुधी आयुर्वेदनी विचारधारा पहोंचाडवा माटेना एक अद्भुत ग्रंथ ने पण त्या पाठ्य ग्रंथ बनाववामां आव्यो छे। मने भी आ ग्रंथनो कोई परिचय नहोतो, पण थोड़ा दिवस पहला, महीनो भी नहीं थयो, थोड़ा दिवस पहला एक विशेष प्रसंग उभो थयो अने ए प्रसंगे मारे आ ग्रंथ जोवानो थयो तो मने भी आनंद थयो। ये ग्रंथનું નામ છે વૈદકીય સુભાષિતાની। એ એના નામ ઉપરથી જ આપણને એ વાતની સૂચના આપે છે કે રોગીને માટે અથવા નિરોગી વ્યક્તિને માટે એક વૈદ્ય તરીકે કયા કયા સુભાષિતો ગોખાઈ દેવા જોઈએ जे सुभाषितोना माध्यमथी माणस निरोगी रही शके। आवा हेतुथी आवा प्रयोजनथी आ सुंदर ग्रंथनी रचना थी छे अने केवल मात्र जनसामान्यने नहीं, निवडेला वैद्य थवुं होय तो पण कया कया सुभाषित आपणा कंठे होवा जोईए एनी विगतो पण आ ग्रंथने जाणवाथी आपणने मळी रहेशे।
આવો સુંદર ગ્રંથ આજે આપણે આવા સુંદર ગ્રંથનો પરિચય મેળવવાના છીએ અને એ પરિચય કરાવવા માટે માનનીય ઉષાબા ઉપસ્થિત છે. એમણે થોડો વખત સંસ્કૃત સાહિત્ય એકેડમી ગાંધીનગરમાં બી કામ કર્યું છે. એ પછી આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં બી થોડો વખત કાર્ય કર્યું છે અને અત્યારે તેઓ ગાંધીનગર પાસેની કોલવડા ખાતે આવેલી આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલયમાં સંસ્કૃતનું અધ્યાપન કાર્ય કરી રહ્યા છે. સંસ્કૃત ભાષાના જિજ્ઞાસુ અને સતત સ્વાધ્યાય કર્મમાં રત રહેનારા, વિષયને સમજવા માટે પોતાની તત્પરતા બતાવનારા અને પ્રતિક્ષણ નવો નવો કોઈ વિચાર આપણને જાણવા મળે, કોઈ જ્ઞાન બિંદુ આપણને પ્રાપ્ત થાય એવી અભિલાષા ધરાવતા માનનીય ઉષાબાનું હું આ પ્રવચનમાળામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કદાચ ઝૂમ પદ્ધતિથી અથવા આવા પ્લેટફોર્મ ઉપર બેન પહેલીવાર બોલતા હશે. એકદમ પ્રારંભિક નવોદિત પ્રતિભા છે બેન. હું એમને આપણા સૌ વતી શુભેચ્છાઓ બી પાઠવું છું આજના વ્યાખ્યાન માટે. અને બહુ જ થોડા સમયમાં એમને આજનો આ પ્રસંગ પૂરો કરવા માટે આપણને સહયોગ આપ્યો છે. તો ટેકનિકલી નાની મોટી અસુવિધા ઊભી થાય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપ સૌ ઉદાર ભાવે અને ક્ષંતવ્ય રાખજો. ફરી એકવાર હું માનનીય ઉષાબાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને વિનંતી કરું છું કે તેઓ વૈદ્યકીય સુભાષિતાની ગ્રંથનો પરિચય કરાવે. માનનીય ઉષાબા ચુડાસમા. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. शान्तिः शान्तिः शान्तिः. नमस्कार. શ્રી બૃહદ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદના પ્રમુખ માનનીય શ્રી પરમેશ્વરી સાહેબ, કુલપતિ માનનીય શ્રી પરિમલ નથવાણી સાહેબ, પ્રમુખ શ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર ચંદ્રકાંત એચ મહેતા સાહેબ, માનનીય શ્રી સુરેશચંદ્ર એમ શૈલત મહોદય, માનનીય પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર ગીતાબેન મહેતા, પ્રધાનમંત્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર વાસુદેવ પાઠક સાહેબ, પ્રોફેસર ડોક્ટર મહેશભાઈ પટેલ સાહેબ, કોષાધ્યક્ષ શ્રી મહેન્દ્ર પ્રસાદ જાની સર અને જેમના થકી મને પરિચય પ્રવચનમાળાના વિસ્તૃત ફલક પર એક મોટી પરોવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે તેવા પરમ આદરણીય ગુરુવર્ય પ્રોફેસર ડોક્ટર કમલેશકુમાર ચોકસી સાહેબ તથા જોડાયેલા સર્વે ગુરુજનોને મારા વંદન. સાથે જોડાયેલા મારા તમામ શ્રોતાગણને હૃદયપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. सबसे पहला तो आयुर्वेद એટલે શું? आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से बना है. मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो श्रोतागण जुड़े हैं उसमें कई छात्र मेरे हैं जो हिंदी भाषा को ही जानते हैं, आउट ऑफ द स्टेट है. तो आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. आयु यानी लाइफ, वेद यानी उसका नॉलेज ज्ञान. तो आयुर्वेद ही बताता है कि जीवन से संबंधित ज्ञान हमें जिस शास्त्र से मिलता है उसे आयुर्वेद कहते हैं. तो इसमें विज्ञान और दर्शन दोनों का मिश्रण है. हमारे 4 वेद है, उसमें से अथर्ववेद का ये एक उपवेद है. उस आयुर्वेद का जिसमें चाहे पूरे वैद्यक से रिलेटेड, वैद्य यानी जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, उसको हमारे प्राचीन शास्त्रों में वैद्य शब्द से हम परिचित है. उसके संदर्भ में
सारी जो चिकित्सा पद्धतियां है, सारे रोग, उसके सारे निदान और पूरे लाइफ का एनसाइक्लोपीडिया जिसमें वर्णित है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। और वो बहुत बड़ा विशाल एक फलक पे रचित है और उसमें इतने सारे ग्रंथ है जिसका नामाभिधान लेना यानी पूरे 1 साल तक उसके ऊपर हमें सिर्फ नाम ही बोलना है। तो ऐसे बड़े ग्रंथ में से सिर्फ एक छोटा सा रत्न जो है वैद्यकीय सुभाषित साहित्य, जिसके संकलन करता है आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर जी, जिन्होंने इनके ऊपर व्याख्या भी साथ में दी है। उन्होंने इस ग्रंथ में वैद्य से रिलेटेड सुभाषित रखी है। हाँ, लेकिन ये समझने की गलती नहीं करनी है कि इसमें सिर्फ ही वैद्य से रिलेटेड है। इसमें जो सारे सुभाषित दिए गए हैं वो आयुर्वेद के विविध ग्रंथ, उनकी सारी टीका उपटीकाएं, श्रुति स्मृति, पुराण ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, चंपू ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, ज्योतिष, व्याकरण, कोश, उसकी भी टीकाएं और भाष्य, इतने सारे बड़े फलक में से चुन के जो सुभाषित सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय थे, ऐसे सुभाषित को चुन के उन्होंने वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम ग्रंथ की रचना की। इसलिए कि उसमें ज्यादातर वैद्य से रिलेटेड सुभाषित थे, इसलिए उसका शीर्षक दिया वैद्यकीय सुभाषित साहित्य, जो वैद्य से रिलेटेड है। अब उसमें जो सबसे पहला उसका हम प्रारूप देखें कि ग्रंथ की रचना किस प्रकार से है, तो उसमें अध्याय में उसका डिवीजन है, यानी वैदिक शास्त्र को उन्होंने एक विभाग में विभाजित किया है और उन्होंने एक से लेकर वैद्य के सारी बातें उसमें समझौते गए, यानी वैद्य शास्त्र क्या है, वैद्य की संहिताएं कौन कौन सी है, उनके प्रणेता कौन कौन है, ये चिकित्सा का क्या महात्म्य है, रोग क्या है, आरोग्य क्या है, व्यायाम क्या है, प्राणायाम का महत्व क्यों है, स्नान विधि क्यों महत्वपूर्ण है, हमारी आंतरिक और बाह्य शौच यानी पवित्रता क्यों जरूरी है, जल का क्या महात्म्य है, अन्न का क्या महात्म्य है। इस प्रकार से एक विषय को संजोते हुए 45 अध्याय में उन्होंने पूरे वैद्यकीय सुभाषित साहित्य का संग्रहण किया है और उसमें साहित्य जगत के बहुत प्रचलित ग्रंथों में से अच्छे सुभाषित चुन के इतने अच्छे ग्रंथ का संकलन किया है और ऐसे ग्रंथ में से कुछ गिने चुने अध्याय हम अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं। तो इतने बड़े ग्रंथ का परिचय देना यानी एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसको समय की मर्यादा में पूरा करने के लिए मैं इसका आपको बहुत कम शब्दों में परिचय दूंगी। इसमें आयुर्वेद के अनुसार जो बातें हैं उसमें सबसे पहला अध्याय है वैद्य शास्त्र विज्ञान। उसमें उन्होंने आयुर्वेद के सारी रिलेटेड बातें बताई है कि आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु बताई है हमारा जीवन किस प्रकार से, तो बताया है सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। सुखायु का मतलब है हैप्पी लाइफ, हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों से जो रहित है, जैसे आज हमारे कोरोना काल में हम देखें तो हम और आप अभी जीवित है, तो ये हमारी सुखायु है। इससे विपरीत दुखायु। उसमें तीसरा है हितायु, हम किसी दूसरे की हित की इच्छा करें, वो है हितायु। किसी की संपत्ति, किसी की कोई चीज हम लेने की इच्छा ना रखें, वो है हितायु। और उससे विपरीत वो है अहितायु। आयु का मान उसमें बताया है, सब मनुष्य का जीवन कोई एक फिक्स एज में नहीं होता, सबका अपना आयुर्मान भिन्न होता है, उसको भी उसमें चिन्हित किया है। और उसमें भी हित और अहित, हमारे आज के जनरेशन को वो नहीं पता है कि हित और अहित क्या है, उसकी व्याख्या उसमें दी गई है। उसी अध्याय का दूसरा जो है सुभाषित, वो वाक्यपदीय ग्रंथ में से लिया गया है, जो भर्तृहरि रचित एक बहुत प्रचलित व्याकरणिक ग्रंथ है, उससे
यहाँ देने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भेषज की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से वैद्य की यहाँ भी बात है। जैसे कि काय वाग बुद्धि विषया ये मलाः समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रे ही तेषां विशुद्धय। शरीर की, भाषा की और बुद्धि की, इनके विषय में जो दोष उत्पन्न हुआ करते हैं, जैसे शरीर का कोई दोष हो तो उसको चिकित्सा शास्त्र के द्वारा दूर किया जाता है। भाषागत कोई दोष हो तो उसको व्याकरण से हम दूर कर सकते हैं। जैसे बोलने में, अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो मैं हूँ गुजराती, तो कुछ व्याकरणिक अशुद्धियां उसमें होती होगी, तो वो व्याकरण शास्त्र से, उसके अध्ययन से हम दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार बुद्धि में कुछ विभ्रमता आ जाती है तो उसके दोष को दूर करने के लिए हमें हमारे अध्यात्म शास्त्र, हमारे जो पूरी शास्त्रीय धार्मिक कृतियां हैं उसका अध्ययन करने से वो दूर हो जाता है। तो यहाँ वैद्य के लिए भी ये सब चिकित्सा शास्त्र के साथ जानना जरूरी है। ये यहाँ इस कृति में, इस वाक्य पद्य के रेफरेंस से बताया। उसी अध्याय में आगे है कि वैद्य की जो संहिताएं है उसका उद्गम किस प्रकार से हुआ है, तो उसको यहाँ बताया है कि पुनर्वसु आत्रेय ऋषि के द्वारा इसका सबसे पहला उपदेश हुआ और उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पराशर, हारिक और क्षारपाणी, इन्होंने फिर इस आयुर्वेद को आगे बढ़ाया। उसी में आगे तीसरा अध्याय है वैद्य संहिता प्रणेता। उनके प्रणेता कौन है? जो ये वैद्यकीय संहिताएं है उनके प्रणेता, उनके कर्ता, उसके बारे में जो बताया है वो है तृतीय अध्याय। और उसमें बहुत सारे इसके श्लोक है। उसमें से एक है यथा सिंहो मृगेंद्राणाम यथा अनंतो भुजंगमे देवानाम च यथा शंभु तथा आत्रेयो अस्ति वैद्य के। हारित संहिता का है। इसमें हारित मुनि ने कहा है कि जैसे मृगेंद्रों में सिंह सबसे बलवान है, सर्पों में जैसे अनंत नाग शेष सबसे अधिक बलवान है, वैसे देवताओं में महादेव है, उसी प्रकार वेदियों में आत्रेय ऋषि है। इस प्रकार यहाँ हर ऋषि की अपनी एक विशेषता को इस अध्याय में बताया। फिर युग युग में कौन कौन से गुरु हुए जिन्होंने इस वैद्यक संहिताओं को जन समाज में इतना प्रचलित किया, उसकी बात है कि कृत युग में अत्रि हुए, द्वापर युग में सुश्रुत हुए और कलयुग में वाग्भट हुए और उन्होंने अपने ग्रंथों से आयुर्वेद का प्रचार किया। इसमें चतुर्थ अध्याय है जिसमें चिकित्सा का महात्म्य दिखाया। चिकित्सा का एक अपना महत्व है, जिसमें काशी खंड नामक ग्रंथ में से उन्होंने यहाँ बताया है कि चतुर्विध दान है। दान यानी देना। जब हम किसी को कुछ वस्तु का सम्यक प्रकार से वापस न लेने के तरीके से जब दान देते हैं तो वो 4 प्रकार का होता है। एक तो नाना शास्त्रों का विचार करके, यानी अलग अलग शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने इहलोक यानी इस भूमि लोक में और परलोक में हमेशा के लिए जो सुख प्राप्ति दे, ऐसे 4 दान बताए हैं। उसमें एक है भयातुर को अभयदान देना। जिसको भय है उसको अभयदान देना, रोगी को औषधि दान देना, जो रोग से पीड़ित है उसको दवाइयां दे के, औषध दे के उसको समीचीन स्वास्थ्य प्रदान करना, वो भी एक औषधि दान है। विद्यार्थी को विद्या दान, जो एक अध्यापक, जो एक गुरु अपने शिष्य को देते हैं। और क्षुधातुर को अन्नदान, जो भूखा है, जो भूख से व्याकुल है, उसको अन्न का दान देकर हम अपने इहलोक और परलोक में सुख प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें भी सभी दानों में औषधि दान का महत्व बताया है, यानी जो भी रोग से पीड़ित है उसको दवाई देकर उसको अच्छा बनाना, ये भी एक दान है। तो चिकित्सा का क्या महत्व है वो यहाँ बताया है कि चिकित्सक होके आप भले ही अपना अर्थोपार्जन कर रहे हो तो भी साथ में आप एक दान का कार्य कर रहे हैं। उसी चतुर्थ अध्याय में स्कंद पुराण का एक संदर्भ देके उन्होंने बताया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ का साधन हमारा शरीर है। किस प्रकार से हमारा शरीर अच्छा है तो ही हम अपने
धर्म में अच्छे से कार्य कर सकते हैं, अर्थ उपार्जन कर सकते हैं। चतुर्वेद पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन हमारा अच्छा शरीर है। और अच्छा शरीर कब होगा? जब हमारा आरोग्य अच्छा होगा। और उस आरोग्य का दान हमें वैद्य ही दे सकते हैं। इसीलिए रोगी को जब आपको चतुर्थ पुरुषार्थ का दान करना है, चतुर्थ पुरुषार्थ में उसे प्राप्ति करवानी है, तो उस मनुष्य के लिए वो डॉक्टर भगवान है। इसीलिए यहाँ बताया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य साधनम यतः तस्मात् आरोग्य दानेन तद्वत् स्यात् चतुष्टयम्। तो आपने उस रोगी को चारों पुरुषार्थ का दान कर दिया। कितनी अच्छी बात बताई है कि आप अगर एक वैद्य है तो आप एक अच्छे मनुष्य भी है, क्योंकि आपने अपने रोगी को 4 पुरुषार्थ का दान दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम अध्याय जिसमें भी बहुत सारे रोग आरोग्य के विषय के ऊपर बहुत सारे सुभाषित है, उसमें से एकाद का हम अध्ययन करें तो उसमें पहला ही जो है वो है महाभारत ग्रंथ। महाभारत को तो सब अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि वो सर्वजन प्रचलित और सबसे प्राचीन हमारा महाकाव्य है। और उसमें लिखा है कि शीतोष्ण च एव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणा। शीत यानी कफ, उष्ण यानी पित्त और वायुश्च और ये वायु, ये 3 प्रकार की हमारी शरीर की धातुएं हैं, जिसको दोष भी कहते हैं, कफ वात और पित्त। और पूरा आयुर्वेद इन 3 प्रकृति के ऊपर चिकित्सा करता है। इन गुणों की जब साम्य अवस्था होती है तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी हमारे तीनों वात पित्त कफ सम्यक अवस्था में, साम्य अवस्था में हमारे शरीर में विद्यमान है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा कहा जाएगा। ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात है और इसी को महाभारत में भी बताया है। अभी हमें पता है कि कोरोना काल में जो बढ़ गया है बीच में, जो वो था कफ प्रकोप, और उसके कारण ऑक्सीजन का लेवल सबका डाउन हो जाता था, तो वो उनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने का एक उत्तम उदाहरण हम बोल सकते हैं। उसी में चरक ने क्या कहा है, स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त करने की इच्छा करने वाले धर्मनिष्ठ महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म करने की दृष्टि से किया है, न कि काम या धन प्राप्त करने की दृष्टि से। देखिए कितनी उदात्त भावना है इस सुभाषित में कि जब स्वर्ग में आपको अक्षय स्थान लेना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको आयुर्वेद का प्रचार करना है, उसके माध्यम से रोगी को रोग मुक्त करना है। इसीलिए इस धर्म का प्रचार किया था धर्मनिष्ठ महर्षियों ने। इसीलिए आयुर्वेद को बनाया था कि आपको अच्छे तरीके से समाज में इसका प्रचार करना है, और इसीलिए इसका उद्देश्य यही होना चाहिए। आप अगर वैदिक शास्त्र में अभी स्टूडेंट है तो आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि पैसा गौण है और मेरा एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं सभी को धर्म की दृष्टि से, न कि धन की दृष्टि से, उसका अच्छी तरह से रोग देखूं। उसके बाद में पंचम अध्याय में शारंगर पद्धति का एक सुभाषित है कि आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जनों से मित्रता, महाकुले जन्म, अच्छे कुल में जन्म, ये एक बात में स्वाधीनता च पुंसाम महद ऐश्वर्यम विना अपि अर्थे ही। बिना अपि अर्थे ही यानी मनुष्य के घर में धन न हो तो भी अगर अच्छा आरोग्य है, वो विद्वत जन है, सज्जन के साथ उनकी बैठक उठक मित्रता है और अच्छे परिवार में उसका जन्म है, तो ये सारी जो बातें हैं वो मनुष्य के लिए बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ी संपदा है। इसके लिए उसको और धन की कोई जरूरत नहीं है। तो महद ऐश्वर्यम बिना अपि अर्थे ही, बिना अपि अर्थे ही, ये आपके बहुत बड़े ऐश्वर्य है। इतनी अच्छी बातें जो अलग अलग ग्रंथों में लिखी गई थी, ऐसे सारे सार तत्वों को उन्होंने यहाँ कलेक्ट करके इस चैप्टर में रखा है। इसीलिए गरुड़ पुराण का भी एक
संदर्भ देके उन्होंने बताया है, कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः केन न व्यसनम प्राप्तम श्रेयः कस्य निरंतरा। गरुड़ पुराण का है कि सभी के कुल में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। ऐसा कौन सा कुल है कि जिसमें दोष नहीं पाया जाता? पूरे जीवन में कोई ना कोई व्याधि तो आती ही रहेगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो व्याधि से पीड़ित न हो। ऐसी कोई भी क्षण न हो जब आपके पास थोड़ा सा भी कोई दर्द ना हो, कोई आपत्ति न हो। तो पूरे जीवन में आपत्ति से पीड़ित कुछ न कुछ क्षण तो आते ही है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस क्षण को न समझ पाए। तो किसकी संपत्ति शाश्वत है? तो उसका कहने का मतलब है कि रोग हमारे शरीर में है या अच्छा आरोग्य है, ये हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें ऐसा खाना खाना है जिससे हमारा आरोग्य अच्छा रहे। आरोग्य वर्धक व्यायाम आदि करना है। तो रोग और आरोग्य का कर्ता हम खुद ही है और इस श्रेयस्कर मार्ग का हमें अवलंबन अपने आप ही करना है हर हमेश के लिए। और इसके लिए हमें फिर किसी का डर नहीं रखना है, चाहे कोरोना आए चाहे म्यूकरमाइकोसिस आए। हम अपने इस शरीर से ऐसे स्वस्थ रहे कि जिसके लिए हमें किसी से डरने की जरूरत न पड़े। और इसी के संदर्भ में 6वां अध्याय जो है वो व्यायाम के ऊपर है। व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो हम अभी समझ चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा ये कोरोना काल में व्यायाम किया है। तो व्यायाम स्थैर्य कराना चरक ने लिखा था। देखिए इतने हजारों साल पहले जब ये ऋषि मुनि हुए तब भी व्यायाम का उन्होंने महत्व दिखाया था। और आज की जो हमारी जनरेशन है, आज की पीढ़ी, वो इससे बिल्कुल हाँ जिम में जाती है, लेकिन अगर आप घर पे बोलोगे तो योग प्राणायाम तो उसके लिए उनमें रुचि नहीं है, थोड़ी सी अभी बढ़ी है वो। इसका भी कारण हम सब पता है। तो व्यायाम जो करने वाले हैं वो सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। इसीलिए उसके बेनिफिट्स दिखाए हैं एक्सरसाइज के कि व्यायाम स्थैर्य कराना, जो शरीर को स्थैर्य करने वाले हमारे कारक है उसमें व्यायाम सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए व्यायाम हमेशा करना चाहिए, ऐसा चरक जी ने बताया। उसी में एक है सुभाषित, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। जो दिने दिने यानी प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का व्यायाम करते हैं उनमें जन्मांतर सहस्रेषु अनेक जन्मांतरों तक न दारिद्र्यम उपजायते, दरिद्र नहीं उत्पन्न होगा। देखिए दारिद्रता था और सूर्य, इनका क्या रिलेशन है? तो वो भी यह बताया है कि सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे श्रेष्ठ है और वो व्यायाम शरीर को तो लाभ देता ही है, हमें स्वस्थ बनाता है। लेकिन आदित्य की कृपा से हमने आदित्य हृदय स्तोत्र सुना है सबने और उससे परिचित है। उसमें लिखा है कि कोई भी आपदा जब हो आपके ऊपर, कोई भी आपत्ति हो, उस समय जब रामायण में भी उसका निर्देश है कि रावण से युद्ध करने के पूर्व श्री राम जी को उसका गान करने के लिए बोला था। तो उसी प्रकार सूर्य का इतना महत्व है कि उसका अगर हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार या कोई भी तरीके से उसको नमस्कार करते हैं तो हमारे शारीरिक और आर्थिक सारे विपदाओं का वो नाश करते हैं। सूर्य नमस्कार के फायदे आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे बताए हैं। उसी में से थोड़े यहाँ लिखे हैं कि मोटापा, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों का दर्द, लीवर, किडनी, ये सारी बीमारियां जो है वो सूर्य नमस्कार, अकेले सूर्य नमस्कार से चली जाएगी। अब यहाँ उसी के आगे बात बताई है कि परिश्रमो मिताहारो भुगताव अश्विनी सुतो तावना धृत्य न इव अहम वैद्यम अन्यम समाश्रये। अगर आप परिश्रमी हैं, श्रम को महत्व देते हैं और मित आहार, मित यानी मात्रा में आहार, आपको समझना आए कि बस ये इतना काफी है, सीमित आहार, ये भोजन की क्षमता आपकी सम्यक हो, मिताहारी हो, ये दोनों हैबिट्स अगर आपके डेली रूटीन में है तो आप इहलोक के यानी इस संसार के अश्विनी कुमार हो। अश्विनी कुमार यानी देवताओं के भीषक वैद्य,
जो देवताओं को समय समय पर कुछ भी विपदाओं में आरोग्य का दान देते थे, आरोग्य को अच्छा करते थे, ऐसे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है। तो बताया है कि अगर आप परिश्रमी हैं, जिसका इस समय में बिल्कुल हमने निषेध है कर दिया है, और मिताहार यानी पिज्जा देखते ही अगर हमें खाने की इच्छा हो जाए और कैपेसिटी से ज्यादा अगर 3 पिज्जा हमने खा लिया तो फिर पेट की क्या हालत होगी। वही बात बताई है कि अगर आप परिश्रमी है या मिताहारी है तो आप ये लोग के अश्विनी कुमार है, वैद्य ही है। और अगर ये सम्यक तरीके से करते हैं तो दूसरे वैद्य का आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्राणायाम का भी महत्व यहाँ बताया है कि जैसे व्यायाम का महत्व है, सूर्य नमस्कार का महत्व है, वैसे ही प्राणायाम का महत्व है। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, उसका निकल जाना मृत्यु है, इसलिए इसका नियंत्रण करें। देखिए, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, वो सब सिर्फ एक वायु अगर 1 सेकंड में चला गया तो वहीं ठप हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि जब तक हमारे जीवन में एक छोटा सा वायु है, प्राण वायु, तब तक ये सब मोह माया ये सब है। जैसे ही वो निकल गया, शून्य मनस हम हो गए पूरा, हमारी संसार की सारी लीलाएं समाप्त। तो उसको अगर सम्यक तरीके से प्राणायाम से, उसके अभ्यास से हम अच्छी तरह से संयमित करते हैं तो भी कई सारे रोग उसमें कंट्रोल में आ जाते हैं। साथ में सभी तरह से धार्मिक दृष्टि से भी हम देखें तो प्राणायाम का उतना महत्व है जितना शारीरिक दृष्टि से। तो अगर वो हमारे जीवन वो स्थित है तो जीवन है, अगर वो चला गया तो मरण है। और उस हमारा दायित्व यहाँ बताया है कि तो हमें उसको नियंत्रित करके रखना है, नियंत्रण करना है। और ब्रह्म आदि देवता भी इस मृत्यु के भय से प्राणायाम में तत्पर हुए थे। ऐसा हठयोग प्रदीपिका का सुभाषित यहाँ पे दिया है कि प्राण का आयाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राण को लंबा करना या प्राण में एक भरना, और एक तरीके से अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो वो सारी क्रियाएं प्राणायाम कहलाती है। उसके बाद में जो अष्टम अध्याय है वो स्नान विधि के बारे में है कि स्नान का महत्व क्या है। तो उसके गुण यहाँ पे बताए हैं कि स्नान के कौन कौन से गुण हैं। स्नानम नाम मनः प्रसाद जननम, वो मन को आनंदित करने वाला है, दुःस्वप्न नाशक। नहाने के सारे गुण यहाँ पे बताए हैं। पवित्रता का अधिष्ठान है, अपवित्रता का अपहारक है, तेजवर्धक है, रूपवर्धक है, शत्रुनाशक है, कामाग्नि दीपक है, स्त्रियों का मन हरण करने वाला और थकावट दूर करने वाला है। तो स्नान के ये सारे गुण अष्टम अध्याय में दिखाए। उसके बाद में नवम अध्याय में अंतर्बाह्य शौच यानी मन के, हमारे शरीर के अंदर की शौच और बाह्य, शरीर के बाह्य की शौच, उसका अन्य ग्रंथों में जो जो जगह से अच्छे अच्छे उसके उदाहरण मिले उसको कलेक्ट करके इस अध्याय में रखा है। तो यहाँ महाभारत का एक अच्छा सुभाषित उन्होंने रखा है कि हे पांडव, तुम अपने अंतरात्मा की शुद्धि चाहते हो तो सत्य जिसका जल है, शील जिसके तट यानी किनारे है, मन संचय जिसमें चढ़ने उतरने का घाट है, दया जिसकी लहरें है, ऐसी आत्मज्ञान रूपी नदी में तू स्नान किया कर। आत्मज्ञान, कितनी सुंदर बात बताई है कि अगर तुम्हें स्नान करना है तो जल से तो है ही, केवल पानी से तो हम करते ही है, लेकिन केवल पानी से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए तू संयम रूपी तीर्थ में सत्य रूपी जिसके उदक है, ऐसे अपने चारित्र्य रूपी तट पर दया की लहरों के साथ स्नान कर। और मनुस्मृति में भी अंतर्बाह्य शौच के बारे में लिखा है कि सर्व प्रकार के शौच में, पवित्रता में अर्थ शौच सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अभी जो करप्शन का युग है उसमें ये बात कितनी सार्थक है कि जो अर्थ में शुद्धि, 2 तरह के अर्थ यहाँ बताए हैं। एक तो अर्थ माने पैसा, धनार्जन में शुचिता, पवित्रता, और दूसरा इंद्रिय की अपने अर्थ में। हम किसी को देख रहे हैं तो वो देखने के भी कई प्रकार है। गुरु जब अपने शिष्य को देखते हैं तो उसमें
जो भावना होती है, और एक रोड से कोई ऐसे कपड़े पहन के निकला हो और एक पुरुष की दृष्टि जिस स्त्री पे जाती है, वो दृष्टि में कितना फर्क है। वो है इंद्रिय का अर्थ में शुचिता, पवित्रता। किसी को भी आप देख रहे हैं, किसी को भी आप बात कर रहे हैं, तो छूने में भी पवित्रता। तो ये सारी इंद्रिय अपनी अर्थ के साथ पवित्रता, और दूसरी तरह से धन उपार्जन करने में पवित्रता। ये बात यहाँ मनुस्मृति में बताई है कि सारे प्रकार की शुद्धता चाहे हो, लेकिन वो पवित्रता में सबसे अधिक पवित्रता वो है अर्थ शोच। और उसको दो तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं। फिर दशम अध्याय जो है वो जल का है। जल का महात्म्य जहाँ बताया है, इसके लिए उन्होंने रामायण का एक उदाहरण दिया था कि सूर्य की किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश रूपी स्त्री 9 मास तक उस जल को धारण कर, उसके बाद में जब आषाढ़ मास होता है, जब वर्षा का समय होता है, तब वो औषध की तरह, रसायन की तरह उस गर्भ को जन्म देती है। कितनी सुंदर कल्पना है, जिसको नीचे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक रामायण का एक और सुभाषित भी मुझे याद आ रहा है कि उसमें भी जल के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी। उसी सुभाषित में ही आता है, समय के कारण मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। उसमें ऐसा है कि भरत जी ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी बारे में शपथ लेने का सोचा, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो मुझे जल को गंदा करने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। तो ये सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं कि देखिए उस समय जल को अपवित्र करना कितना बड़ा महापाप माना जाता था। और आज के जमाने में अगर हम देखें तो उसको कई ऋषियों ने वो बीड़ा जड़पा है कि वो अपने तरीके से उसको कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीके से उसमें कितने अभी पीछे हैं। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। बहुत अच्छा सुभाषित है कि पानी की हमारे बॉडी के ऊपर कितनी इफेक्ट, कौन कौन से तरीके से किस समय पे हम पीते हैं तो उसका किस प्रकार का असर होता है, वो बताया है कि अगर अजीर्ण है, हमारा पेट कुछ गड़बड़ है, तो अगर हम पानी का सेवन कर रहे हैं तो वो औषधि का काम करता है। भोजन खाने के बाद थोड़े घंटों के बाद वो पच जाए तब हम पानी पीते हैं, तो वो बल प्रदान करता है। बीच बीच में खाना खाने के टाइम थोड़ा थोड़ा अगर हम पानी पीते हैं तो वो शरीर में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए उसको अमृत के समान बताया है। अमृतम च अमृतम वारी, वारी माने जल। और भोजन करने के तुरंत बाद जल नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि उससे पाचक रसों में मंदता आती है, इसलिए उसको विष प्रदम, विष के समान बताया है। उसके बाद में आगे के जो सारे सुभाषित है उसमें ये 10 अध्याय के बाद अलग अलग चैप्टर में अलग अलग उसके महत्व बताए। जैसे ये जो सुभाषित है धूमः ज्योति सलिलम मरुताम, वो मेघदूत से उद्धृत है, जिसमें जो 20वां अध्याय है विषय विज्ञानी है उसका है। उसमें विषय के बारे में बताया है कि इंद्रियों और विषयों में कैसा संबंध है। कि मेघदूत का सुप्रसिद्ध ये सुभाषित है कि जिसमें यक्ष अपनी यक्षिणी को, जब उसको एक शाप मिलता है और वो स्वर्ग लोक से नीचे आ जाता है भूमि लोक पे, तब वो एक संदेश भेजता है मेघ के द्वारा। तो मेघ तो एक अचेतन पदार्थ है, तो भी वो उसको भेजते हैं, उसके माध्यम से संदेश भेजते हैं कि तू जा और ये संदेश यक्षिणी को देना। तो ये इस प्रकार की विषय की बात है कि जो विषय से आसक्त है उसको ये भी नहीं पता चलता है कि कामातुर मनुष्य चेतन और अचेतन का भेद भी नहीं कर पाते हैं कि ये मेघ वहां तक संदेश ले जाने में समर्थ है या नहीं है। तो यहाँ विषय की बात है, विषय वासना में जो व्यक्ति मग्न है उसकी बात है। उसके बाद में 24वें अध्याय में भी मृग्याक्षो दिवा स्वप्न परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकम वृथाट्या च कामजो दशो गुण, मनुस्मृति का ये उदाहरण है। उसमें उन्होंने शरीर में जो कामज गण से उत्पन्न होने वाले दोष है उसको बताया है कि मृग्या शिकार करना, द्युत यानी
खेलना वो, दिन में निद्रा लेना, प्रदोष, कथन, स्त्री सेवन, मद्यपान, तौर्यत्रिक यानी 3 प्रकार के हमारे व्यसन नृत्य, गीत और वाद्य में, और वृथा, पर्यटन, ये सारे 10 जो है वो कामज गण है, जिसको हम व्यसन कहते हैं मनुस्मृति के। इसके अलावा मनुस्मृति में क्रोध के भी व्यसन बताए हैं, और उपरोक्त जो सारे कामज दोष व्यसन बताए उसमें भी मद्यपान, युद्ध, स्त्री सेवन, ये क्रम से बताए हुए 4 व्यसन इस व्यसनों में अत्यंत दुखदायक है। यानी अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप द्यूत खेलते हैं, या तो आप स्त्री सेवन में रत है, तो आप इस जीवन में सबसे कष्ट पाने वाले मनुष्य होंगे। उसमें भी आगे लिखा है कि व्यसन और मृत्यु, ये 2 चीजें अगर आपके सामने आ जाती है तो इस दोनों में से भी व्यसनी ज्यादा अधोगति को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मृत्यु आई तो वो बात फिनिश हो गई, लेकिन अगर आपने व्यसन डाला तो आपके साथ आपके घर के लोग भी जुड़े, जो बिना किसी वजह आपके साथ परेशान होंगे। साथ में मृत होने के बाद आपको व्यसन के कारण इहलोक में तो जगह नहीं मिल पाएगी, लेकिन परलोक में भी जगह नहीं मिल पाएगी और आपको नरक में जाना पड़ेगा। इतनी सुंदर बातें जो हमारे शास्त्रों में लिखी थी, ऐसी ऐसी सुंदर बातों को उन्होंने यहाँ हमें दिया है। फिर आगे सर्वदर्शन संग्रह का जो एक सुभाषित है, उसको उन्होंने 25वें अध्याय में दिया है। स्वभाव विज्ञानी, स्वभाव यानी हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे समाज के ऊपर भी। तो यहाँ सर्वदर्शन संग्रह का एक सुंदर श्लोक रखा है कि अग्नि जैसे स्वभाव से ही गर्म है, जल जैसे स्वभाव से ही ठंडा है, और वायु इस दोनों का सम्मिश्रण है, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म। तो ये कैसी विचित्रता है, ये किसने बनाई है? तो ये स्वभाव से ही ऐसी स्थिति है कि ये विचित्रता स्वभाव से ही है। तो स्वभाव को उन्होंने चिन्हित किया है कि स्वभाव सभी का अलग अलग होता है। हितोपदेश, जो हितकारक उपदेश देने वाला ग्रंथ है, उसने भी स्वभाव के बारे में बताया है कि जिसका जो स्वभाव होता है वो सदैव अपरिवर्तनीय रहता है। यानी कुत्ता आदि राजा, एक दिन के लिए हम उसको राजा बनाए तो भी वो उसके राजा की चेयर पे बैठ के भी अपना जो काम है वो ही करेगा, वो राजा का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने स्वभाव से नहीं छूट सकता। उसके बाद में एक बहुत अच्छी बात है, युक्ति व्यपाश्रय भेषज विज्ञानियम नाम का जो अध्याय है, उसमें उन्होंने बताया है कि आहार, औषधि और अन्य द्रव्यों की जो योजना होती है वह युक्ति व्यपाश्रय भेषज है। भेषज यानी दवा, ऐसी दवाई जिससे हम रोगी को सिद्ध कर सके। आयुर्वेद में 3 चिकित्सा पद्धति है, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। इसमें यहाँ युक्ति व्यपाश्रय की बात है कि कोई ऐसा आहार हो, कोई ऐसी औषधि हो, या कोई ऐसी चीज हो जिससे हम अपने रोगी का इलाज कर सके। तो उसमें उन्होंने एक आगे सुंदर सुभाषित दिया है जो मुझे बहुत प्रिय लगा, कि महाभारत में ऐसा लिखा है कि न च भार्या समम किंचित विद्यते भिषजाम मतम औषधम सर्वदुखेषु सत्यम एतद् ब्रवीति में। और दूसरा है नास्ति भार्या समम किंचित नरस्य आर्तस्य भेषजम। कितनी सुंदर बात है कि पत्नी के समान सब दुखों में दूसरी कोई औषधि नहीं है। आपके घर में आप कोई मानसिक पीड़ा से अगर पीड़ित है तो भार्या एक ऐसी नारी हर रोल में महान है, उसमें भी पत्नी के रूप में वो अपने पति का मानसिक तरीके से बहुत सहयोग करती है। तो ऐसी बातें जो हम महाभारत में कही गई थी उसको इस अध्याय में यहाँ दिखाया है। उसके बाद में एक बहुत सुंदर बात बताई है कठोपनिषद की, जिसको वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के 40वें अध्याय में सत्वावजयी भेषज विज्ञानियम में बताया है कि सत्वावजयी का मतलब है अहितकर अर्थों से मन का नियंत्रण करना। हमें अपने मन को ऐसे अहितकर, जो हमारे लिए हित में नहीं है, ऐसे अर्थ से बचा के रखना। तो उसके अध्याय में उन्होंने कठोपनिषद का ये सुंदर सुभाषित दिया है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।
मन का यहाँ महत्व है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग। ગુજરાતીમાં કીધું છે કે મન હોય તો માળવે જવાય, એટલે મન જ આપણને બંધનમાં નાખનારું છે, या तो फिर वो निकालने वाला भी है। तो यहाँ आत्मा को स्वामी, शरीर को रथ, बुद्ध को सारथी यानी वो चलाने वाला रथ, और मन को प्रग्रह यानी लगाम, जिससे हम अपने पूरे शरीर को, हम अपने आत्मा को, शरीर को कंट्रोल नहीं कर सके, ऐसे मन को निग्रह करना है। और मन के नियंत्रण से भी हम अपने कई सारे रोगों में, चिकित्सा में इसका अच्छी तरीके से रोग में से बाहर आ सकते हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए लास्ट में सबसे अंतिम जो अध्याय है 45वां, उसमें बताया है कि शारंधर पद्धति करके जो आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें बताया है कि मृत्युर्बिभेषि किम मूढ़ हितम मुंचति किम यमः अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्मनि। हे मूर्ख, क्या मृत्यु से डर रहे हो? क्या डरने पर मृत्यु पकड़ती नहीं है? ऐसे समझते हो तो मिथ्या धारणा है। मृत्यु केवल जो जन्मा नहीं उसी को पकड़ती नहीं, इसीलिए फिर मैं जन्म ही न मिले इस प्रकार से प्रयत्न करूं। कितनी सुंदर बात बताई है कि जो जन्मा है उसको मरना ही है। कोई गुजराती में कहिए छे ने कि अमर पाटो लईने कोई नथी आव्युं, तो जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित आना ही है, तो फिर उसे डरना क्या? हाँ, प्रिकॉशन जरूरी है। जैसे कोरोना हो तो उसके लिए मास्क, सैनिटाइजर वो जरूरी है, इसीलिए वो हमें हर मिनट में फोन में बोलते रहते हैं। हाँ, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम इस मृत्यु पर विजय पा सके, फिर इस जन्म मरण के चक्र में ना आए। इसीलिए हमें क्या करना है? हमारा कर्तव्य करना है। ऐसा कर्तव्य जो गीता जी में कहा है, जिसको समत्व योग कहा है, जिसको कर्म योग कहा है, ऐसी सारी बातें जो हमारे ग्रंथों में अच्छी अच्छी बताई है, उस श्रेयस्कर मार्ग पे चल के हमें अपने इहलोक और परलोक को सुधारना है। और वो भगवत कृपा से हमें मिलेगा। उसके लिए हमें अपने कर्मों को उसके अधीन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, ये तो एक छोटा सा, जिसको हम एक बूंद बोल सके सागर में, इसे सागर की एक बूंद को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। ऐसी बहुत सारी बातें इस पूरे अध्यायों में वर्णित है, जिसको आप अगर पढ़े तो आपको एक बहुत अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करने का और उसमें से सार को ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। બહુ જ ધન્યવાદ છે ઉષાબેન આપનો। જુઓ, ઘણા બધા વચનો આપણે સંસ્કૃત સાહિત્યના જુદા જુદા ગ્રંથોમાં વાંચીએ છીએ। माननीय बहन ने हिंदी में आज अपना परिचय करवाया है इस ग्रंथ का, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने छात्रों को भी इस प्रवचन माला में उपस्थित रहने का निर्देश किया और वो उपस्थित रहे। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे जो शास्त्र है उनकी एक एक विचारधारा है, और ये विचारधाराएं मिलकर के भारतीयता बनती है, भारतीय संस्कृति बनती है। ये बताया गया कि जो शरणागत है ना उसकी रक्षा करो। पूरी दुनिया पशु पक्षी और मानव के रूप में दो हिस्से में बटी हुई है। मनुष्य की विशेषता है कि वो अपनी जान दे करके भी शरणागत की रक्षा कर सकता है, यदि वो मनुष्य है तो। पर इसके विपरीत यदि वो सामर्थ्य होते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं करता,
शरणागत का शोषण करता है तो समझना चाहिए वो मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी प्राणी भी नहीं है, परंतु राक्षस की कोटि में चला जाता है, दानव की कोटि में चला जाता है। आयुर्वेद शास्त्र अकेला ऐसा शास्त्र नहीं है, सारे धर्मशास्त्र हमारे ऐसे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी ऐसी है। और इस व्यवस्था को लिया प्रकृति से। मैं ऐसे इस बात को रखने का प्रयत्न करूंगा कि थाली में पिरसी हुई सब्जी और रोटी है ना, वो भी थाली की शरणागत है। आप कल्पना कीजिए कि ये थाली उसकी रक्षा नहीं कर सकती, तो रोटी सब्जी का क्या होगा? अब इस रोटी और सब्जी को हाथ ने तोड़ करके अपने हाथ में लिया, तो वो जो खाद्यांश है वो उंगलियों के शरणागत है। इस शरणागति में वो खाद्यांश की रक्षा नहीं हो सकी, तो क्या होगा? और केवल रक्षा ही नहीं, उंगलियों में जो शरणागत हो गया खाद्यांश, वो कहां जाएगा? नाक में चला जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों जी, मेरे हाथ की उंगलियों को मेरा नाक प्रिय नहीं है, मेरी आंखें प्रिय नहीं है, मेरे कान प्रिय नहीं है, पर उंगलियों को भी मालूम है कि मेरे शरणागत जो पदार्थ हुआ है उसकी सुरक्षा, उसकी सफलता मुख में डालने से। इसी तरह से आयुर्वेद पढ़ने वाले आप सब लोग हैं, अब आगे बढ़ाइए इस बात को। यह अन्न जठर के शरणागत होता है, जठर में से फिर आंत में शरणागत होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, सभी जगह पर शरणागत वस्तुओं की परिपालना होती है, उचित सत्कार होता है, उसके अस्तित्व को सफलता दी जाती है और आगे बढ़ा दिया जाता है, रोका नहीं जाता। यही बात भारतीय इतिहास में देखिए, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा मैं। राम के शरणागत हुए विभीषण, विभीषण का राम ने क्या किया? उसकी रक्षा की और उसके जीवन को सफल बनाने के लिए रावण को हटा करके उसकी जगह पर बिठा दिया। कि विभीषण शरणागत हो गए तो राम ने उसका शोषण नहीं किया, उसको चेला नहीं बना दिया, उसका धन दौलत नहीं ले लिया, उससे अपने पैर नहीं दबवाए। ठीक इसी तरह से देखिए, पूरे समाज में एक अध्यापक के सामने छात्र आता है तो वो अध्यापक का शरणागत है। अब अध्यापक को क्या करना है वो आप देखो। एक व्यापारी एक दुकान के दरवाजे पर एक ग्राहक आ जाता है, वो ग्राहक भी शरणागत है। एक बस के अंदर यात्री के रूप में कोई आ जाता है तो वो ड्राइवर और कंडक्टर का शरणागत है। ये सारे शरणागत यदि मनुष्य की शरण में आए हैं तो उनकी सुरक्षा होना, उसके ऊपर दया भाव रखना, उसका कल्याण करना, ये भारतीय संस्कृति का रूप है। आज नई नई साधन और सामग्री की शोध के साथ साथ शरणागत के शोषण की गलत परंपरा शुरू हो गई है। होना ये चाहिए था कि शरणागत का शोषण मत करो, शरणागत के ऊपर दया रखो, शरणागत को अपनी ओर से जितनी सहायता दे सकते हो उतनी दो। तो देखिए, इन सारी बातों के आधार पर
संस्कृत भाषा की दृष्टि से यदि गुरु के शरणागत शिष्य है तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य की सर्व प्रकार से रक्षा करे। वैद्य के शरणागत जब भी रोगी होता है तब वैद्य का भी ये कर्तव्य है कि शरणागत का शोषण न करे, उसकी सर्वात्मना सुरक्षा करे। अब ये उपदेश तो कड़वा सा लगेगा, क्योंकि यदि वैद्य लोग भी, डॉक्टर भी शरणागत की सेवा में लग जाएंगे तो फिर उनके गाड़ी मोटर बंगले कैसे चलेंगे। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि जो वैद्य, जो डॉक्टर अपने शरणागत रोगी का, शरणागत आतुर का दया भाव से संरक्षण करता है, उस पवित्र कार्य को, इस अखिल ब्रह्मांड को संचालित करने वाले ईश्वर भी देखते हैं और उसको अलग अलग प्रकार से सुख देते हैं। इसलिए देखिए, जो शरणागत दर्दियों का शोषण करके बहुत धन संपन्न हो गए हैं, उनकी एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, उनके परिवार की हालत बहुत सुख देने वाली नहीं होती। हर किसी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए लोग जिन्होंने भी शरणागत का शोषण किया है, वो 2, 4, 5 वर्ष, 10 वर्ष, एक पीढ़ी सुख देखते हैं, पर दूसरी पीढ़ी उनकी बर्बाद ही बैठती है। समूलम तो विनश्यति होता है। इसीलिए देखिए, ये जो वैद्यकीय सुभाषितम ग्रंथ का परिचय कराया गया है, इसके सुभाषितों को हमको याद रखना है। भीतेभ्यः अभयम देयम, और इसी तरह से व्याधितेभ्यः तथौषधम। तो व्याधित व्यक्ति क्या है, किसकी शरण में जाता है? वैद्य की शरण में जाता है। और भीत व्यक्ति, भय पाया हुआ व्यक्ति किसके पास जाता है? किसी बलवान के पास जाता है। अब बलवान ही शोषण करने लगे तो क्या है? तो देखिए, बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि गाय के दूध को भी पात्र में शरणागति लेनी पड़ती है, तब उसकी सार्थकता है। पर जिस पात्र में आपने गाय के दूध को रखा, उस पात्र ने शरणागत गाय के दूध को बिगाड़ दिया, फैला दिया, तो इसमें दोष किसका है? गाय के दूध का नहीं है। गाय का दूध जिसके शरणागत हुआ, उस ग्लास का, उस पात्र का दोष है। तो भगवान यदि हमको वैद्य के रूप में, अध्यापक के रूप में, वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में पात्र बनाते हैं, और यदि हमारे शरणागत कोई होता है तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये बात मैंने इसलिए भी कही कि आज कई छात्र आयुर्वेद पढ़ने वाले भी जुड़े हुए हैं, और ये तो सार्वजनिक बातें हैं। तो मैं माननीय उषा बा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उनको ये शुभकामना भी देता हूं कि आज हम उनके शरणागत हुए और उन्होंने हमको वैद्यकीय सुभाषितों का ठीक तरह से परिचय करा करके शोषण नहीं किया, पर हमारे समय की सुरक्षा की, हमारे दिमाग में वृद्धि की, हमारे विचारों में वृद्धि की। यही तो हमारा आचार है। कई बार वक्ता ऐसा होता है कि श्रोता उनके शरणागत हो जाते हैं, तो वक्ता फिर उनका शोषण करते हैं। तो ये बहुत सार्वत्रिक विचार है। मैं फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं।
कि आपने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ का हमको परिचय कराया, और किसी दिन इस ग्रंथ को केंद्र में रख करके हम एक दिवसीय परिसंवाद का आयोजन भी करेंगे। उसमें भी आपके सहायता की हमको अपेक्षा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ साधार वंदन। जी, इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।